Hi everyone, my name is Ashima Goyal, and this year I have secured rank 65 in UPSC Civil Services Examination 2019, and I started preparing for UPSC examination in 2018, and this was my second attempt. So my option was chemistry, and I think that has all the marks are yet to come, but I think chemistry as an optional has helped me to get such a good rank. So there are, I think, two reasons why I would suggest anybody to take chemistry as an optional if they feel comfortable as in chemistry as a subject. Is because one, it provides you diversity, because you cannot keep on studying general studies for the general GS papers as well as for the optional papers. So it provides you diversity. Sometimes if you don't feel like studying GS general studies, you can shift to chemistry or any other science optional for that matter. So that is one thing, and second is because as a science subject, this is a certain optional, because you can get good marks. I think the highest that chemistry has given till now is 331. So that is one thing, and second is that you can, whether what you write will directly replicate into how much you get. So there is no subjectivity in like the other papers. So I think these two things make chemistry a very favorable optional. And I took coaching from Dias Academy. I used notes of R.K. Singh sir of chemistry, and also I undertook the evaluation and test series program of sir. And I think that has actually helped me to furnish my preparation of chemistry, because sometimes we feel we know enough, but when we actually write it in the exam in that environment, we actually get to know where we are heading and what kind of mistakes we are making. And in especially in mains, in this examination, how you write is very important. You may know things, but to present them in that particular way which helps to understand the examiner is very important. And that is something that the evaluation that and the feedback that I got from sir, how to write the mechanisms in the second paper, which has organics as a section. So these become important. And lastly, I would like to just say, if you feel you are comfortable in chemistry as a subject, I think people should go for it, because as I earlier said, science, one, it's a science subject, and second, provides diversity. And I would also like to share my strategy in detail in a personal session, so that may be held shortly. Thank you so much. चैनल पे आज आपको ये बताएंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही थी, क्या इनका बैकग्राउंड रहा था, कब से इन्होंने सोचना शुरू किया। तमाम आपके पास ये प्रश्न होते हैं जब आप तैयारी करने की बात करते हैं, जब शुरू करते हैं आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर के, देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस इन फैक्ट इनसाइड योर माइंड। ठीक है, तो इन सबों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग भी सभी लोग क्या करें, असीमा जी का स्वागत करें, असीमा गोयल का। ठीक है, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर हैविंग 65th रैंक इन यूपीएससी। सो प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, आपकी पढ़ाई लिखाई का परिवेश कैसा रहा है, और कब से आपने यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किया है। आसिमा प्लीज। जी, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी, ऐसा नहीं था कि कोई चाइल्डहुड ड्रीम था जैसे इन जनरल लोगों का होता है। तो समवेयर इन माइंड था कि आईएएस कुछ बड़ी चीज़ है, लेकिन व्हेन आई केम टू कॉलेज तो वो डाइल्यूट हो गया, and I started developing interest in my own field, which was biotechnology. So I have done engineering from IIT Delhi in biotechnology. But later on, somewhere I had this thing that I wanted to have a social contribution wala angle. So उसके लिए कभी समझ नहीं आता था कि what kind of profession one can choose. So I thought of joining NGOs also. Then I thought of coming back to academics and teach in IIT itself again. And IAS was also one option, because it gives you a lot of authority to bring transformation and bring change in the society. But when exactly the moment that I decided was when in my final year, because I saw a lot of students and a lot of people from our college cracking the exam and getting into good ranks. So that's where that fear part actually dissolved.
and I decided to take this attempt and go for this exam. So that was about how I came into this preparation. And and the other thing that you asked was about my family background. So I come from a very simple middle class family. Not many of the my siblings are are that educated. So it's like in my family, me and my sister, we have done good in education, and but the environment was always motivating, pursue higher studies. And especially my parents, they didn't stop me from I also did job for 1 year, but and I quit that job for preparation, but there was not even a least resistance regarding that. So that's a great thing कि आप इतने humble background से रह करके और आपकी family इतनी supportive रही हैं. And in fact you are really an inspiration for those people जो कि जिनका humble background होता है. So कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने देखा है कि preparation में जब हम लोग आते हैं, कई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं humble background से होते हैं, but कई बार उनको लगता है कि should I go for UPSC directly or not, ठीक है ना? But you are a living example for them. और निश्चित तौर पे आप उनके लिए काफी ज्यादा प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं. असीमा, मुझे आप बताएंगे क्या कि आपने किस अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. सेकंड अटेम्प्ट, दैट्स अ गुड थिंग. और सेकंड अटेम्प्ट में आपने 65th रैंक हासिल किया, दैट्स अ ग्रेट थिंग. फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी, आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ उसमें बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी, आई वाज वर्किंग व्हाइल आई वाज गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो जितना भी मुझे जॉब के बाद समय मिलता था, आई यूज्ड टू स्टडी 4 hours ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई यूज्ड टू यूटिलाइज माय वीकेंड्स. तो वीकेंड्स पे पढ़ाई हो पाती थी, और जॉब के बाद जो भी 3-4 घंटे मिल पाते थे. तो मुझे लगता था प्रिपरेशन ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में आई मिस्ड द कट ऑफ बाय अराउंड 15 मार्क्स. सो दैट वाज द मार्जिन. तो बहुत ज़्यादा उससे कुछ सीखने के लिए मुझे नहीं लगता है उस अटेम्प्ट से, बिकॉज मैं आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ. सो आई थिंक वो बस ये था कि टाइम थोड़ा सा इनसफिशिएंट था, कि मैं शायद थोड़ा और अगर कर पाती प्रिपेयर, शायद मैं क्लियर कर लेती उस अटेम्प्ट में भी. ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट थिंग. कितने आमतौर पे आप कितने समय निकाल पा रही थी उस दौरान जब आप जॉब में थी? तो कितना वक्त आपसे निकल पा रहा था, कितना मैनेज कर पा रही थी? क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग वर्किंग होते हैं, जैसे कि आपने भी वर्किंग रहते हुए प्रोफेशनल थी आप, एंड देन यू वर एस्पायरिंग फॉर दैट, तो आप सोच रही थी. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जॉब में रहकर के एस्पायर करना चाहते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि क्या उनके लिए सजेशन हो सकता है आपके पार्ट से कि अगर उनको करना है, जो आपने अपनी जो आपने गलतियां हुई या किसी कारण से आप लैग कर गए 15 मार्क्स से दैट यू शेयर्ड विद अस, तो क्या उनको करना चाहिए कि जॉब में रहते हो? क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जॉब को क्विट करके वो प्रिपेयर करें. सो आपको क्या लगता है कि उनके लिए कितना वक्त होना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो जॉब के साथ रह के भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना तो पड़ेगा कि चैलेंजिंग तो है जॉब के साथ आपको निकालने के लिए. अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू इट विद जॉब. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने के बावजूद मेरे से 4 से 4.5 घंटे ऑन अ डेली निकल पाते थे. इज हाफ देन व्हाट स्टडी. तो वो कंपेयर तो नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ मच टाइम यू डिवोट. टाइम मोटिवेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि होता क्या है, जब आप जॉब में होते हैं तो जॉब का जो स्ट्रेस है, जॉब के टाइम लाइन्स, डेडलाइंस, दे अफेक्ट यू, एंड कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि या तो छोड़ के ही होगा या फिर नहीं होगा, वी शुड लीव द ड्रीम, और या फिर हमें जॉब ही छोड़ देनी चाहिए. तो 2 चीज़ें हैं मैं जो लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी जो लोग जॉब के साथ करते हैं. पहला, अप्रिशिएट योर कंस्ट्रेंट्स. आप उनको प्रॉब्लम्स ना माने कि मैं तो जॉब के साथ पढ़ रहा है, मुझे किसी का फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं. तो अप्रिशिएट करें और अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि दिस इज द रीजन व्हाई आई एम स्टिल वर्किंग, एंड उनको बड़ा समझें और उनके साथ चलें. पहली चीज. दूसरी चीज, डिसिप्लिन रहें और अपना जॉब में भी एक डिसिप्लिन लेके आए कि सेट योर टाइमलाइंस की इतनी ज्यादा मैं काम नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ. जैसे मैंने क्या किया था, आई मेड पे ना लाऊं. आई यूज्ड टू डिवोट होल टाइम इन ऑफिस, बट उसके अलावा मेरे कलीग्स को भी मैंने मतलब इस तरीके का मैसेज दिया कि मैं नहीं करती हूँ घर पे काम. तो वो मेरे लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा टाइम, एक स्टेबल एक्स्ट्रा टाइम रहता था. तो एक डिसिप्लिन रखें उसमें. और तीसरी चीज़ है मोटिवेशन. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है.
आप जब जॉब करते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, वो आप यू शुड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ within the constraints. These three things, if you keep it on regular basis, so certainly it may take some time than a normal aspirant, but you will definitely achieve the dream. That's a great thing that you share. So whatever you learned from your experiences, that's a great thing. Okay, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने ये बात कहने की कोशिश ये करी कि जब जॉब में थी तो आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा रहता था, तो आपको आमतौर पे लगता है कितने प्रिपरेशन की जरूरत है डेली बेसिस पे, कितने आवर का स्ट्रेच आपके पास होना चाहिए कि लोग इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर पाए इफ दे हैव टाइम फॉर 1 ईयर? मुझे नहीं लगता कि 14 से 15 या उससे ज़्यादा घंटे पढ़ पाना तो ह्यूमनली पॉसिबल भी है, क्योंकि आपको सोने का समय भी चाहिए, कुछ अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम भी चाहिए होता है, आपके कुछ हॉबीज होती हैं, तो उनको परस्यू करना चाहिए बिकॉज इट रिलीजेस द स्ट्रेस। तो मैं जो पढ़ती थी 9 से 10 घंटे मेरा आमतौर पर पढ़ाई होती थी, वो फ्लक्चुएट भी होता था, बट एक जो चीज़ मैं मेक श्योर करती थी दैट वाज रेगुलरिटी। आई मेड श्योर कि बहुत लंबे ब्रेक्स ना आए, बिकॉज जो ब्रेक्स आते हैं इट टेक्स पहले का और बाद का टाइम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एंड वो जो मोमेंटम है अगर वो ब्रेक हो जाए एक बार, it's very difficult to come back to that, the whole preparation and that momentum. So जैसे कभी मेरा मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो मैं ये नहीं किया मैंने कि पूरा ही छोड़ दी तैयारी, वीडियोस से पढ़ लिया, या फिर फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल पढ़ने का मन नहीं है तो जीएस पे शिफ्ट कर लिया, या जीएस का मन नहीं है तो ऑप्शनल पे शिफ्ट कर लिया। सो वो मुझे लगता है कि रेगुलरिटी अगर हम रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड है कि टास्क रखें एंड शॉर्ट टर्म गोल्स रखें, क्योंकि दिस इज एन एग्जाम विच इज लाइक अ मैराथन, तो आप स्प्रिंट्स नहीं मार सकते हैं इसमें, कि स्प्रिंट्स भी मारने पड़ते हैं व्हेन द एग्जाम कम्स क्लोज, बट उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा एक साल आप वो बहुत ऐसा फेज है जहाँ पे लोगों का डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोटिवेट फील करते हैं, तो उसके लिए मुझे जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो शॉर्ट टर्म गोल्स। तो आई यूज्ड टू कीप कि 10 दिन में ये खत्म करना है, 15 दिन में ये खत्म करना है, 10 दिन में ये रिवाइज करना है, और आई यूज्ड टू कीप दोज गोल्स वेरी बिग, क्योंकि दैट यूज्ड टू गिव मी दैट रश कि नहीं, ये इतना बड़ा टारगेट सेट किया है तो अब इसको अचीव कर लिया तो समथिंग इज देयर। हाँ, तो मुझे वो हेल्प करता था, एंड आई थिंक आई एम श्योर सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक फैक्टर रहता हो, यू ऑलवेज वांट टू चैलेंज योरसेल्फ विद योर गोल्स, तो वैसा अगर आप रखेंगे तो एक ये इंटरेस्टिंग भी बनी रहेगी प्रिपरेशन, और एक डेली बेसिस पे आप उससे डेविएट नहीं होंगे। दैट ग्रेट थिंग दैट यू शेयर्ड। आपने ये बताया कि गोल्स हमेशा कभी बहुत लंबे नहीं रखने चाहिए, शॉर्ट गोल रखें। अगर शॉर्ट गोल अगर आप अचीव कर पाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रखता है, ठीक है ना। लेकिन आपने दो चीजें आपने अभी डिस्कशन के दौरान आपने बताई है। पहला ये कि आपने ये बताया कि कई बार आप वीडियोस वगैरह देखते थे। सो आई वुड लाइक टू नो वन थिंग कि आज के जमाने में कि ऑनलाइन कितना ज्यादा इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत जगह कई बार ये नोशन आता है कि आज की तारीख में ऑनलाइन बैठ के यूपीएससी आईएएस को क्लियर करना एंड यू डिड। तो ये आपको कैसा लगता है कि ऑनलाइन जो सिस्टम है ऑनलाइन का वो कितना हेल्पफुल हो सकता है? एंड अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, सो प्लीज। So if I want to give मैं बोलना चाहूँ कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मेरी तैयारी में, तो आई वुड से more than 70-80%, क्योंकि I did not join as such a coaching classroom program, but मैंने जो भी मुझे लगा कि आज कि मेरा ऐसे वीक है या मुझे ऐसे के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस लेनी है, तो या फिर मुझे मेरा एथिक्स वीक है, मुझे उसके लिए गाइडेंस लेनी है, आई रिलाइड ऑन ऑनलाइन क्लासेस। सो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन क्लासेस हम अवेलेबल करा पा रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक अनअकैडमी, एंड तो उसमें क्या है कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को अवेलेबल करा पा रहे हैं, वन फैक्टर इज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो आज क्या है कि यू पीपल डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस एंड सी कि नहीं राजेंद्र नगर में ही रहना है, वहाँ ही जाके पढ़ाई करनी है, या 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद ही यू कैन थिंक ऑफ प्रिपरेशन। सो जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन channels and online platforms. And second is the accessibility.
जो रिमोटनेस वाला फैक्टर है, ऑल्दो उसमें भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर गांव में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बट अभी हम देखें कि कोरोना के केस में भी आई थिंक सारा दारोमदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही है, बिकॉज कोचिंग्स वगैरह सब बंद है। तो ये जो है सिस्टम है, ये इतनी ताकत भी रखता है कि इतने बड़े चैलेंज में भी स्टिल पीपल आर स्टडीइंग एंड डूइंग देयर वर्क, इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद। तो बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल है ये प्लेटफॉर्म, और काफ़ी इसका इन जनरल भी कंट्रीब्यूशन रहता है। और इस कोरोना पेंडेमिक में तो आप देख ही रहे हैं कि आई थिंक सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ही है। That's a great thing. That's a great thing कि आपने ये बताया कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म हो सके, तो ऑप्शंस हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी इज अ गुड ऑप्शन फॉर दिस टाइम, बिकॉज कि जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं आज की तारीख में आप देखेंगे कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी हैं। यू कुड आल्सो ज्वाइन अनअकैडमी। जो प्लेटफॉर्म है हमारा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल हैं। मैम ने भी बताया जिस तरह आप लोगों को कि एथिक्स हैं, एथिक्स की पढ़ाई भी कई बार जो होती है आपने देखा है कि कई जगह ऑफलाइन पे बहुत बेहतर नहीं मिल पाता है, बट ऑनलाइन पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू कैन अवेलेबल हियर, राइट हियर। सो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन भी, यू कैन आल्सो टेक दैट, ठीक है ना। यू आर यूजिंग माय कोड आल्सो, आई एम आल्सो ओवर देयर, देयर इज 100 ऑफ टीचर्स, सैकड़ों से ज्यादा टीचर्स यहाँ हैं अनअकैडमी यूपीएससी की सेगमेंट में। दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड और बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस लेते हैं, सो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, राइट मैम। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो आपने मुझे बताया ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरा ये है कि आपने अपने अभी डिस्कशन के दौरान एक बात और भी क्लियर करी थी, वो ये बताया आपने कि कई बार ये जो प्रोसेस है पूरा यूपीएससी के प्रिपरेशन का, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कई बार मूड स्विंग्स भी आते रहते हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो हाउ यू कीप योरसेल्फ रेजोनेटेड, मतलब डेली बेसिस पे भी और लंबे समय के लिए कैसे मोटिवेशन रखना, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन इट्स नॉट वन डे एग्जामिनेशन, बिकॉज कि आपको 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन से क्रॉस करना होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर फाइनली इंटरव्यू, और हर एक स्टेज पे आपके पास गजब का चैलेंज होता है। So how to keep yourself motivated? And आप क्या करती थी whenever you are feeling dead? तो आपको कैसा लगता है कैसे रेजोनेट रखा जाए? जी, काफी सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली ऑन दिस पॉइंट। पहला कि मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है ह्यूमन माइंड, कि आप अच्छा करें तो आपको और अच्छा करने की चाहत होती है। तो मैंने तो आप शॉर्ट टर्म प्लान्स का जो मैंने पॉइंट बताया, व्हेन यू अचीव देम यू मेक बिगर गोल्स and you then again try to achieve them, and the same thing happened with me। तो short term plans में एक positive feedback चलता है, अगर आप उसको continue रख पाएं तो this preparation becomes very easy। Second is appreciation हमें लोगों से मिलता है या हमें टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं उससे मिलता है। when you get good rank or you are improving, तो it always keeps up your vigor। and कहीं पे कई बार लगता है कि यार हम काफी मेहनत कर रहे हैं, चेंज भी कर लिया, बहुत सारी चीजें चेंज करके भी देख ली, स्टिल हम नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। दैट्स वेयर द होल मोटिवेशन गोज डाउन। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन में लोगों से जो एप्रिसिएशन मिला ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या टेस्ट सीरीज से जो मिला, इट ऑलवेज पुश्ड मी विद हाई विगर एंड मुझे मोटिवेटेड रखा। That may not be the case with everybody, because सबको अपने challenges face करने पड़ते हैं and at times you may feel demotivated, but कुछ ऐसा हो जो आपको अपने बारे में गुड फील कराए, that you're doing something good, and then that gives you the power and the strength to go forward। that is one thing। second is I think ये इतना डिस्ट्रैक्शन है आज, और बहुत सारी चीजें हमारे फैमिली में भी कुछ इश्यूज कभी ना कभी होते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत स्मूथ होती है प्रोसेस, कम ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, इमोशंस होते हैं, यू हैव टू स्ट्रगल विद एवरीथिंग। तो उसके लिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रिलाई किया है इस पे, एंड 10 minutes ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एवरी डे, इट वर्क्स। why you are doing something and why। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग होते हैं जब आपस में भी बात करते हैं, ये कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन क्या मेडिटेशन में भी आपकी पढ़ाई जैसी कंसिस्टेंसी रही है कि आपने रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन भी किया है? जी, मेडिटेशन तो मैंने रेगुलरली किया है, लेकिन वो फोकस मेरा मेडिटेशन में वेवर करता है एट टाइम्स, जब when my mind is not stable or something is occupying my mind, maybe related to preparation or family or something else, तो वो focus नहीं रहा। but I made sure that I keep the habit even if I'm not feeling like doing meditation। it happens, it's easy to say meditation करना चाहिए, but we all know that it's very difficult to stabilize the mind and
amidst all these uncertainties. That happens whenever you are going for that ना, तो कई बार होता है कि यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है, that's really happens. अच्छा, आप मुझे एक बात और बताएं, मुझे नहीं बताना बल्कि एस्पिरेंट्स जितने भी लोग हैं, आप प्लीज उनको एक ये बताएं कि अभी 4th of October को फिल्म्स होना है, जो कई बार अभी टलता हुआ अभी आ गया है 4th of October को, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप शायद यूपीएससी ले ही लें, क्योंकि कई एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, अब देयर इज नो पॉसिबिलिटी एज ऑफ माय नॉलेज कि अब एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो. तो ये जो कम समय भी बच गया ना 2020 वाले बच्चों के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि आपकी तरीके से बनना चाहेंगे डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए अभी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड देन पीटी के बाद क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा इधर आपने देखा हो कि ऑसिलेशन रहा है, होगा नहीं होगा सारी चीजें. तो अभी प्लीज थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि क्या उनको अभी क्या अप्रोच उनका होना चाहिए. एंड दूसरा मैं ये चाहूंगा कि आप जब स्ट्रैटेजी बताएं तो ये बताएं जब जो बिगनर्स होते हैं ना, उस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि मैंने देखा है, जब कभी भी मैंने अपने टोटल जो कैरियर रहा मेरा पढ़ाने का, उसमें 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा ये कि बच्चे कई बार आते हैं, उनको ये लगता है कि पहले पीटी करना चाहिए फिर मेंस करना चाहिए. आपको क्या लगता है कि क्या ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर का आपको राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होना चाहिए जब शुरू करते हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और अभी की ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2020 के बच्चों के लिए, 2021 के लिए, 2020 के लिए क्या होना चाहिए, और मिनिमम टोटल कितना समय लग जाता है तैयारी करने के लिए. तो पहली बात जो आपने बोली कि अभी की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूंगी, जो 2020 वाला अटेम्प्ट लोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो जो गेसेस लोग लगा रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जिनको अटेम्प्ट देना है, वो इन गेसेस को छोड़ें और ये मान लें कि एग्जाम होगा ही उसी दिन. नहीं होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट मोर टाइम, बट ये जो अनसर्टेनिटी वी क्रिएट इन आवर माइंड, इट हेल्प्स नोबडी, क्योंकि उससे हमारी जो प्रिपरेशन का मोमेंटम है वो ऑलवेज लूजन एंड वीकन होता है. तो पहली तो मेरी एडवाइस यही रहेगी उन सारे कैंडिडेट्स के लिए कि आप फाइनल मान लें एग्जाम को. आप ये आइडिया ना लगाएं कि कैसे पोस्टपोन करेगी या नहीं करेगी. लीव इट अप टू देम. यू प्रिपेयर because that's the work that as a candidate as an we should do. Second thing that you asked was whether the preparation has to be integrated or it has to be separate for prelims and mains. So definitely it has to be an integrated preparation. I have seen so many aspirants who used to prepare with me. Sometimes क्या होता है कि prelims नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा prelims पे focus हो जाता है, but once prelims get cleared तो mains के लिए they are not adequately prepared, so वहाँ पे वो रह जाते हैं फिर से. तो हमें केवल prelims नहीं clear करना है या हमें केवल mains clear नहीं करना है, हमें exam as a whole clear करना है, तो उसकी preparation भी हमें पूरी ही करनी पड़ेगी. मैं अपना एक personal example देना चाहूँगी इसमें, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि रैंक तो मेंस से ही आनी है, लेकिन ये भी लगता था कि प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं करेंगे तो मेंस लिखने को भी नहीं मिलेगा. तो वो एक जो बैलेंस है इस प्रिपरेशन का कि कितना टाइम प्रीलिम्स को देना है, कितना मेंस को देना है, दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. वो हर इंसान को पता होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है किस फील्ड में. तो वो जो थिन लाइन है, हाउ यू हैव टू ट्रेड दैट पाथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने जब I started preparing for prelims 3 months before. I started preparing in February for this attempt, but I realized that I'm not adequately prepared with my optional. And अगर मेरा prelims हो भी जाता है तो शायद मैं 3 months में नहीं कर पाऊंगी cover to get a good rank. तो मेरे लिए बहुत difficult decision था whether in between the prelims preparation I should take up my optional again. But I took that risk and I devoted 15 days of my prelims preparation time to my optional chemistry. तो अभी भी मैं जब लोगों को बताती हूँ तो दे से कि यार ये तो बहुत रिस्की था, मतलब ऐसा हो सकता था कि प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता. तो मुझे लगता हाँ कि रिस्की तो था, लेकिन फिर मुझे लगता कि अगर मेंस में रह जाती तो भी तो मेरे लिए तो इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट. सो वो जो एक रिस्क है या वो जो आप बैलेंसिंग करते हैं वो आप अपने हिसाब से सोचें, अपने आप से पूछें कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं और दोनों को टाइम दें. रैंक मेंस से ही आएगी तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी. अगर पूरे 1 साल की बात करें तो मैंने शायद 70% टाइम मेंस की प्रिपरेशन को दिया है, जिसमें आंसर राइटिंग को मैंने ओवरऑल इन द होल ईयर फोकस किया है. इट वाज नॉट अ 3 months प्रोसेस कि प्रीलिम्स के बाद शुरू किया. प्रीलिम्स के बाद तो रिवीजन शुरू हुआ जो ऑलरेडी किया हुआ है. प्रीलिम्स से पहले आपका एक राउंड ऑफ मेंस हो जाना चाहिए विद ऑप्शनल भी और जीएसपी.
प्रीलिम्स के बाद आप उसकी प्रैक्टिस ऑन अ एक स्प्रिंट स्केल पे आप शुरू करते हैं कि अब आपको बस पेपर्स लिखने हैं, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, कई बार नहीं कर पाते हैं पहले प्रीलिम्स से पहले। कुछ लोग उस 3 महीने में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मेरी उनको एडवाइस यही रहेगी कि पहले ही कर लें मेंस का भी काफ़ी ज़्यादा, प्रीलिम्स के लिए भी टाइम बचाएं, और फिर जो 3 महीने का टाइम आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिलता है उसको बहुत प्रोडक्टिवली इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज करें, ना कि बिगिनिंग करने के लिए। हाँ, यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपकी बात में से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आजकल जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर भी आ रहा है जी, जो बेसिस पे नहीं आ रहा, अब बहुत ज्यादा एनालिटिकल बेसिस पे आ रहा है, लगा क्वेश्चन जो आ रहा है, और दूसरा टू द पॉइंट भी नहीं आ रहा, बल्कि बिहाइंड द स्टेटमेंट सब क्वेश्चंस आने लगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता नहीं है कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो तैयारी होनी चाहिए वो हमेशा मेंस और जो प्रीलिम्स है दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो प्रीलिम्स के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उसे हमें स्कैन करके सीव करके अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि अब कई बार की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं रहती तो प्रीलिम्स क्रैक करना रियली बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत डाइसी हो गया है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि शायद आप वही बात कह रही हैं कि जो प्रीलिम्स है दैट इज क्वाइट डाइसी, और इसके लिए आपको लगता है कि पीटी और मेंस दोनों को इंटीग्रेशन में लेकर चलना चाहिए। आई बिलीव कि आप शायद ये बात करेंगे। दूसरी बात, आपने एक बात कुछ कह रही थी आप? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपके बातों से मुझे एक बात और मेरे ध्यान में एक बात आ रही है। आपने कहा कि आपने मैक्सिमम तैयारी अपनी जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन पे करी है, ऑनलाइन पे, तो यहाँ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे भी आपको फोकस करना पड़ा था। तो ऑनलाइन सिस्टम में आपने कैसे जो प्रैक्टिस का जो आप करती थी मेंस आंसर राइटिंग, उसका इवैल्यूएशन कैसे करवा पाती? इवैल्यूएशन का तरीका क्या था? जी, या ऑनलाइन में मेरा आंसर राइटिंग में तो आई वुड से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं ऑनलाइन का, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ही ज्वाइन की थी। सो आई यूज्ड टू गो टू द सेंटर एंड राइट द पेपर्स एंड गेट देम। सो ऑल्दो एट टाइम्स कभी-कभी लगता था कि ILP वगैरह जैसे कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप questions you can grab from these platforms and then you can try to write and implement that. But honestly मेरी preparation में offline का काफी रोल रहा, मेंस की preparation। Okay, that's great thing. Okay, एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा एस्पिरेंट के साइड से ही, ये है कि क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अपने पास जीएस का जो पेपर है वो सारा जो जीएस 1, 2, 3 और जो 4th है वो आपका पूरा एथिक्स का ही पेपर है, तो उसको छोड़ दें अगर हम, तो जीएस जो है इसमें तमाम सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, स्टैटिक पोर्शंस भी पढ़ने होते हैं, कई डायनेमिक पोर्शन भी है जिनका सीधा सरोकार जो है करंट अफेयर्स से होता है, ठीक है। तो हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जीएस वाइज? मैं चाहूंगा कि आप पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किस तरीके से, एनवायरमेंट, इकोलॉजी में जो आपकी स्ट्रेटेजी रही हो कि कैसे चीजों को हम अपडेट भी कर सकते हैं और स्टैटिक पोर्शंस को भी कवर कर सकते हैं, उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो जी, मुझे लगता है सिलेबस वाइज जाना बहुत सही रहेगा इसमें, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लगता है एक बार जब हम जीएस का सिलेबस देखें और पेपर देखें, लेकिन आप टॉपिक वाइज जाएं और हर एक लाइन को उठाएं और उससे रिलेटेड कुछ एक मटेरियल पढ़ लें। जैसे मैंने विजन के कुछ मटेरियल्स थे जो ऑफलाइन थे, मैंने वो फॉलो किए। तो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आप जब एक सिलेबस की एक लाइन पढ़ते हैं उस पर आपका कुछ ना कुछ रेडी रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जीएस के चारों पेपर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक अपना सिलेबस लेके उससे आप बनाएं, कुछ नोट्स बनाएं या कुछ करंट अफेयर्स भी उसी से रिलेटेड आप उनको पिनअप करते रहें, ताकि एक डिसिप्लिन वे में एक आपको रहे। वरना बहुत सारे लोगों को एंड तक भी ये समझ नहीं आता है कि अभी जीएस 2 में पढ़ लिया लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें आई स्टार्टेड राइटिंग विद 1.5 hours ऑफ पेपर्स, 10 questions and 1.5 hours का पेपर होता था, एंड उसमें दे मेड श्योर कि एक एक टॉपिक प्रिपेयर्ड हो। कई बार क्या होता है, आप पूरा टूट पड़ते हैं जीएस 1 एक साथ तैयारी करते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं, दैट डजंट हेल्प। क्योंकि कभी फॉर एग्जांपल इफ आई टेक जीएस 1, तो उसमें जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है उसका पेपर नहीं आएगा, पेपर में इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर लेकिन कई बार आ जाते हैं क्वेश्चंस। लेकिन जब आप उसको एज अ सेपरेट पोर्शन तैयार करते हैं तो तब आप एक उसका जो डिटेल में पढ़ लेते हैं, इट प्रिपेयर्स यू फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस। सो व्हाट द क्रक्स इज, जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप सिलेबस लें और कुछ ना कुछ उस पर जरूर प्रिपेयर करें। पहली बात तो ये जो जीएस के सोर्सेज की बात है। दूसरा, करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेटेड रहें और उनको पिन अप करते रहें। जो स्टैटिक पोर्शन है आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा, हालांकि प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ने में बहुत फर्क है। सेम स्टैटिक पोर्शन को हमें डिफरेंट अप्रोचेस से पढ़ना पड़ता है। व्हेन वी आर प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो हम फैक्ट ओरिएंटेड, फैक्ट सेंट्रिक रहते हैं। मेंस में हम एनालिसिस सेंट्रिक रहते हैं। तो
उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स को रिलेट करते रहें और उनको एक जगह अपना वेदर यू मेक इट इन एवरनोट, वन नोट और ऑफलाइन, आप उनको रिलेट करके और देन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपने अभी अच्छी बात बताई कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री की आप बता रही थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमसे कर रही थी कि शायद क्वेश्चन बहुत कम देखने को पेपर मिलता है, बट क्वेश्चन जनरली वहां से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता ऑन एन एवरेज। एंड ऐसा भी नहीं है, मुझे लगता है शायद आई बिलीव कि यू मस्ट बी एग्रीइंग विद दैट कि कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है तो आज की तारीख में जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है मेंस के एग्जामिनेशन, वो सारे के सारे इंटरलिंकेजेस हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पूछा जा रहा है। अगर आप पॉलिटी के बारे में ही बात करें तो आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके पास समझ में आनी चाहिए, आपको जो है कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉलिटिको इकोनॉमी नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज का है या फिर आपका वो क्रूड पॉलिटी का हो या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का हो या इकोनॉमी का, राइट। सो आपको इंटीग्रेशन में देखना चाहिए। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं शायद आप यहाँ पर थोड़ा बेहतर आप गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि कई बार बच्चे, आपने कहा था कि बच्चे टूट पड़ते हैं, किसी पेपर 1 को किया तो लगा कि उनको पढ़ लिया और एग्जामिनेशन देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि जब प्रिपरेशन, ये शायद आपने ऐसा किया होगा कि हमें मैक्सिमम 2 to 3 पेपर्स एक साथ करने चाहिए और फिर जब वो उस पर हमारी कमांड या अथॉरिटी डेवलप कर जाती है तो फिर हमें उसको रिवीजन का काम करना और नेक्स्ट हमें 2 or 3 सब्जेक्ट्स को देखते रहना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज इट अ साइंटिफिक वे? क्या वैज्ञानिक तरीका है ये पढ़ाई करने का? सॉरी, लाइक यू वांट टू से 2 to 3 पेपर्स ऑफ वन GS1? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जब प्रिपरेशन कर रही होती है तो ऐसा नहीं कि पढ़ने में तमाम सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीजें पढ़नी होती है। तो अगर हम प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो एक बार में हम 2 से 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी अथॉरिटी डेवलप करें, ठीक है ना। फिर सेकंड राउंड में जब 2 से 3, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट स्पैन में हमारे पास प्रिपरेशन करना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स भी बनाने चाहिए, तो हमें लगता है ऐसा नहीं कि 2 से 3 महीने में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद फिर हमें दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलना चाहिए और इस वक्त जो हमने पढ़ाई करा है उसका रिवीजन करना चाहिए। आपको लगता है क्या कि ये साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का, या आपने कुछ अलग तरीके से तैयारी करी है? प्लीज थोड़ा सा। नहीं, जो आप बोल रहे हैं काफी हद तक सही है कि एक सब्जेक्ट लें, उस पे अपनी कमांड बनाएं, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें साथ में पढ़ रहे हैं। बट इवन फॉर दैट मैटर, मैं अपना ऑप्शनल और जीएस का अगर बताऊं कि हाउ आई यूज्ड टू मैनेज, कुछ लोग पढ़ते हैं कि दिन में अपना ऑप्शन पढ़ लिया एंड शाम को आपने अपना जीएस का कर लिया या ऑपोजिट। बट मैंने आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जब मैं ऑप्शनल पढ़ रही हूँ तो मैं ऑप्शनल ही पढ़ूँ, क्योंकि जो आप कंटिन्यूटी आपको जो पुश देती है कि ये खत्म करना है, वो बहुत जरूरी है। जब आप दोनों चीजों को साथ साथ पढ़ते रहते हैं तो आपको वो पुश नहीं आता है। बट व्हेन यू सेट द टारगेट्स कि 10 दिन में ये खत्म करना है, पेपर खत्म करना है, तो उसके लिए वो कंटिन्यूटी चाहिए। तो आई थिंक डिफरेंट अप्रोचेस कैन सूट टू डिफरेंट पीपल। कुछ स्टूडेंट्स साथ साथ में पढ़ते हैं दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, बट पेपर वाइज इट इज़ वेरी सजेस्टेड एक ही पेपर लें, उसके कंपोनेंट्स को पूरा करें, उसकी प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाए, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रादर देन आप स्ट्रगलिंग विद ऑल द फोर पेपर्स टुगेदर। That's true. That's true. And what about optional paper and AC? AC section also plays an important role. काफी ज्यादा रोल प्ले होता है क्योंकि AC में मार्क्स भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल और AC काफी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। फिर जीएस तो हर किसी के लिए कॉमन हो जाता है, बट AC का अप्रोच और जो ऑप्शनल का अप्रोच है, और इसमें कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है अपने जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसका मैक्सिमाइज। और दूसरा एक सवाल और भी मैं चाहूंगा ऐड करूं आपके लिए कि कई बार बच्चे ये सोचते रहते हैं कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, शुड आई गो फॉर दिस सब्जेक्ट और दिस सब्जेक्ट और दैट सब्जेक्ट, बट आपने शायद केमिस्ट्री से करा है तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली ऐसा होगा कि मटेरियल भी बहुत कम होगा इसके ऊपर, गाइडेंस भी बहुत प्रॉपर नहीं रहा होगा, एंड यू हैव टू डू एट योर ओन, अपनी सारी चीजें खुद से करी होंगी। तो ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए, ठीक है, और किन बातों का ध्यान में लेके करना चाहिए, और कोई फिक्स नोशन नहीं होना चाहिए। राइट, सो टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, चूजिंग द ऑप्शनल सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कुछ भी चूज कर लें, फिलोसफी ले लें या कोई साइंस सब्जेक्ट ले लें, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहला है कि इंटरेस्ट बनाएं, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट लें। सॉरी, सेकंड है कि अगर पॉसिबल है उस इंटरेस्ट वाले सबसेट में चूज अ साइंस सब्जेक्ट, बिकॉज मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस रहा है, इट इज स्कोरिंग एंड इट इज सर्टेन। क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या है, जब आप लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, दे आर आल्सो क्वाइट स्कोरिंग नाउअडेज, बट फिर भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी कि वो सब्जेक्टिव है, कितने नंबर मिलेंगे, आई डोंट नो। बट केमिस्ट्री है या फिर और कोई अदर ऑप्शनल है, आप पूरा करके आए हैं 20 में से 18 या 17, आई डोंट नो क्या स्कोरिंग रहता है, बट उसमें आपको ये पता है कि आपने सही आंसर निकाला है, इतने नंबर तो आएंगे ही। तो जो सर्टेनिटी है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर पॉसिबल है तो चूज अ साइंस सब्जेक्ट,
दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, क्योंकि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट लें जो स्कोरिंग हो और जिसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हो। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया एक बार, कई बार क्या होता है हमें लगता है कि बहुत लेंदी है, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी हैं, मैथमेटिक्स लेंदी है या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी हैं, तो आप ये ना माने कि एक ही अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, लेकिन उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहेगा। सेकंड अटेम्प्ट में जो आप नहीं पहले में कर पाए वो आप कर सकते हैं। तो स्कोरिंग ही लें, ऐसा ना लें कि आप एक ही चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर वो आपको अपना ऑप्शनल चेंज करना पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल में। And I'm sorry, I forgot the first question. I will give you a reminder for that second question, but I would like to add one more question right here. क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पिछले साल का अगर ट्रेंड एनालिसिस अगर देखें, जो आपके सीनियर्स हैं जो सर्विसेज में गए हैं, तो ऐसा नहीं कई बार कि उन लोगों ने ऑफ बीट सब्जेक्ट्स को लेकर नहीं किया है। इनफैक्ट जो उनके रीजनल पेपर्स हैं उनको भी लाइक मलयालम को लेकर के उन्होंने क्रैक ही नहीं किया, बल्कि दे आर द गुड रैंकर्स, दे आर विद इन 20 रैंक्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल मुझे लगता है कि लेकर के आप बायस हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप जो कह रही हैं मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ आपसे। मैं भी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप वैसे सब्जेक्ट को लें जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट जिसमें आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो यू कैन डू वेल इन दैट, राइट ना। सो ये कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। एंड ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स हो या साइंस हो, कोई भी यूपीएससी बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहती है, उसका प्रोसेस पूरा डेमोक्रेटिक होता है, कुछ भी कहीं भी बायस होती नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एसी को लेकर के क्या कहना चाहिए, एसी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या राइट। तो एसे का मुझे लगता है कि दिस इज अ पेपर व्हिच इज वेरी प्रॉमिसिंग बट इज मोस्ट इग्नोर्ड, एंड सबसे कम टाइम हम जिसको देते हैं पूरी प्रिपरेशन में वो एसे का ही पेपर होता है। बिकॉज हम लोग ना मतलब काफ़ी लोगों को इंक्लूडिंग मी इन द इनिशियल स्टेजेस ये कैच नहीं हो पाता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी, वेदर वी हैव टू राइट अ 10th क्लास में जो मैसे लिखते थे वैसा लिखना है, या क्या डिमांड्स है, हेडिंग्स डालनी है या नहीं डालनी है, कौन सा टॉपिक चूज करें, और उसके लिए एक सही गाइडेंस मिल नहीं पाती है। टॉपर्स के भी ऐसे पढ़े तो उसमें भी ये लगा कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, कुछ लोग बहुत हाई फाई लिख रहे हैं कि कोट्स हैं और इट्स वेरी लेस अंडरस्टैंडेबल, कुछ लोग बहुत ही सिंपल लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है पहली बात तो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड अभी मार्क्स आर येट टू कम, बट मुझे ये लगता है कि मेरे एसे से की वजह से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा, क्योंकि आई हैड अ गुड फीलिंग व्हाइल राइटिंग माय एसे पेपर। दूसरा है कि इसको टाइम दें, 7 दिन में नहीं करें इसको, जो लोग 7 ही दिन देते हैं एसे को। हम ऑप्शनल भी हमारा एक पेपर 250 का होता है और एसे का भी 250 का ही होता है, लेकिन हम ऑप्शनल पूरे साल पढ़ते हैं और एसे को हम केवल 7 दिन पढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें, उसको टाइम दें, उसको भी टाइम दें, और उसका भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी रैंडम है, उसका एक प्रोसेस है। आप किसी की इंग्लिश अगर बहुत वीक है उसको भी टाइम दें थोड़ा सा। आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स पे मुझे नहीं आता है, उनको थोड़ा अलग से पढ़ लें, थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें कि कैसा है, और एक कम से कम 10 ऐसे तो लिख कर ही जाएं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट आपने सीख बहुत कुछ लिया और आप फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग इज इन योर एग्जामिनेशन हॉल। ऐसा होता है, क्योंकि सुनने में भी आता है कई बार। तो प्रैक्टिस भी करें और अप्रोचेस डेवलप करें कि जब नहीं आता है कोई भी ऐसे। एंड सेकेंडली, चूजिंग द ऐसे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि कैसा ऐसे चूज करना है, डिफिकल्ट टॉपिक चूज करना है या नहीं करना है, और अपने आप को ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन कि लास्ट ईयर ऐसा पेपर था एंड इसमें से तो चारों में से मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड नॉट अटेम्प्ट एनी। आई थिंक 2018 में ऐसा था कि द टॉपिक्स वर वेरी लाइक इंट्रिकेट। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये इसका मतलब इस तरफ भी हो सकता है एंड इस तरफ भी हो सकता है। यू आर सेइंग you're saying right कि reflexive essays बहुत ज्यादा आने लगे हैं आजकल, that is of your reflex that you have to write, right? और उसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि आप क्या इंटरप्रिटेशन लें उसका, और इट में डेविएट कम्प्लीटली 180 डिग्री हो सकता है। तो उस टाइप के एसेस को आपको लेना है, नहीं लेना है, या फिर नहीं लेना है तो व्हाट इज द सेफेस्ट अप्रोच। ट्राई टू पुट ऑल सिनेरियोज इन योर माइंड एंड ट्राई टू पुट योरसेल्फ कि ऐसा एग्जाम हॉल में है एंड हाउ विल यू चूज। तो मुझे लगता है इस तरीके के सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए ऐसे की तैयारी ज़्यादा टाइम दें, इसको इम्पोर्टेंस दें। इसमें भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रैंडम पेपर है दैट यू गेट, सो एंड देयर इज स्कोप दैट रियली प्लेज अ लॉट इन योर मार्क्स इंप्रूवमेंट। जो आपके रैंक इंप्रूवमेंट की बात होती है उसमें काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। एक और जो सेगमेंट बच गया दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू पार्ट।
सो आपका जो इंटरव्यू बोर्ड में जब जैसे ही आप एंटर करती हैं रूम के अंदर, जब भी जैसे ही होता है आप एंटर करते हो, व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम व्हेन यू एंटर इनटू द रूम? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? फर्स्ट रिएक्शन जी, फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा सा इट वाज विद फियर, क्योंकि व्हेन आई सेट ऑन द चेयर वो स्लिप हो गई पीछे की तरफ, तो आई वाज कॉशियस कि ये क्या हुआ एकदम से। और लेकिन हाँ, गुड था इंटरव्यू पैनल, दे वर स्माइलिंग, सो इट वाज कॉर्डियल एनवायरनमेंट फॉर मी। लाइक आई हर्ड बहुत सारे लोगों का नहीं था कॉर्डियल, स्ट्रेसफुल रहा, तो फॉर दैट प्लेड इन माय फेवर। सो ओवरऑल दैट रिएक्शन वाज अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड फियर थोड़ा सा। एंड हाउ वाज द बोर्ड? Board was cordial. Board was very cordial. I had a TC and answers board, and they asked me questions related to my DAF. I think hardly one or two questions was out of my background areas. It was completely. So can you recall some of the questions to share your experience with the students who are watching you? So कुछ specific question that could be beneficial for anyone, या कुछ ऐसा situation based question भी कई बार आ जाते हैं। आपके सपोज यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड यू डू समथिंग लाइक दिस, तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आपके पास भी कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रिएक्शन का भी कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, या क्रूड एकेडमिक से पूछे गए, या कंटेम्परेरी इश्यूज से केवल पूछे गए? इज देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वुड लाइक टू शेयर? मिक्स था वैसे, सब कुछ। मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड, आई वाज मोर इनटू रिसर्च बैकग्राउंड बिकॉज़ माय मेजर वाज इन बायोटेक्नोलॉजी and I had done some foreign interns also. So chairman sir asked on that area how was my experience and everything. And situation based में I come from Mewat, which is the most backward district of the country. So and there is a lot of robbery and murders and everything. थोड़ा वहाँ पे naughty environment है. तो in that sense वो पूछा गया कि as an IPS how will you tackle that situation. But one question that that was in my mind, जो मैं जनरली लोगों को बताती हूँ, was last में chairman sir asked कि no, somebody else in the panel asked, if you are given an opportunity to be CEO of a company, a biotechnology company, or if you are given Indian Defence Account Services, what will you choose? So I smiled and I said, sir, honestly I have not given it a thought yet. So chairman sir laughed and he said, no, that's a good answer, that's an honest answer. So and everybody laughed. So that is something जो मुझे लगा कि went into my favor, because both started laughing and maybe admiring the honesty. So so overall the interview was cordial. That's great. और कितने members कितने थे? 5 थे या अभी 3 थे? आपके बोर्ड में कितने members? 5 members थे। Psychologists भी कोड कॉर्नर में होंगे, right? Okay, that's a great thing. And आपके preferences क्या थी? Services की preferences क्या रही हैं? जी, first was Indian Administrative Service, second is Indian Police Service, and third was Indian Revenue Services (IT), then Indian Foreign Service, Indian Revenue Services, Customs. So you must have the question कि आपने आप second थे या third पे foreign service क्यों नहीं दिया? Why you opted for revenue services? It might be a probable question. I don't know whether it was asked or not. But it was not asked in the interview. It was a question. Okay, that's great. So you just tell us a lot of thing about yourself. जो आपकी पूरी जो preparation की जर्नी थी, आपने बहुत अच्छे से आपने शेयर किया. In fact, I believe कि you are really a role model for lots of people. पहला तो ये हो गया जो women हैं उनके लिए आप role model हैं, number 1. Number 2, जितने भी humble backgrounds हैं, they all are, my best wishes are with them. In fact, my best wishes also for you. मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सर्विसेज में जाएं. And I have a very gut feeling कि आप जाएंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी ब्यूरोक्रेट होंगी. I personally believe this. जो इतनी देर मेरी बातचीत आपसे हुई है, मुझे लगता है कि definitely you will do something great. So wherever you are going to be posted, and जो भी कैडर, I hope कि आपको IAS तो मिल ही जाएगा. तो आपका जो भी कैडर मिल रहा है, तो definitely you will prove yourself as a good bureaucrat and you will pro people. जो भी डेवलपमेंट का काम होगा आप करेंगी. एंड डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स को बताई हैं, जो आपके जूनियर्स होने वाले होंगे, बहुत सारे जो लोग आपको देखेंगे, एंड दे विल फील डेफिनेटली आप एक इंस्पिरेशन का काम उनके लिए जरूर करेंगे. ठीक है. सो आसिमा, आई बिलीव कि थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि आपने अपना समय दिया. अभी आपके पास काफी सेलिब्रेशंस का समय होता है. लॉट्स ऑफ थिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, घर वाले लोग भी, बाहर वाले लोग भी. अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट का टाइम लगेगा. वंस यू आर इन द सर्विसेज, तो फिर टाइम भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है. जब तक कि लोग आपके पास 24/7 सर्विसेज आपकी होंगी, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि काफी मुश्किल होगा, और उसमें से आपने थोड़ा वक्त दिया, हम सभी के लिए दिया. सो थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेट यू. Thank you, sir.
So thank you very much. Thank you. So last word, would you like to conclude something for the aspirants? Any quote or anything so that they will keep themselves motivated?